Good morning, students. Today we will continue our chapter Electoral Politics with a question: what makes elections in India democratic? Students, as we have discussed earlier in the previous video, what makes an election democratic? Again, we will revise the points. First, one vote, one value. Second, parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. Third, election must be held regularly after every few years. Fourth, the candidate preferred by the people should get elected. And fifth, elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish. Okay. In this video, our question is, what makes elections in India democratic? So students, the following features of elections in India make elections in India democratic. First, independent election commission. Second, popular participation. Third, acceptance of election result. In this video, we will discuss about independent election commission. तो स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कौन है इंडिया में? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स द इलेक्शन इन इंडिया एंड इलेक्शन कमीशन वर्क्स इंडिपेंडेंटली इन इंडिया. मतलब इलेक्शन कमीशन वो है जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है, पूरा प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन करता है. ओके, इट मीन्स इलेक्शन कमीशन टेक ऑल द डिसीजन regarding the elections and election commission work independently like the judiciary. Okay, अब क्या डिपेंड करता है whether elections are democratic or non-democratic. It's totally depend on who conducts the election. चाहे इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं या नॉन डेमोक्रेटिक हैं, ये डिपेंड करता है कि उस देश में इलेक्शंस कौन करवा रहा है. ओके, मान लो इलेक्शंस फॉर एग्जांपल आर हेल्ड इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक पाकिस्तान एंड चाइना. ठीक है, अब डिपेंड करता है कि इलेक्शन वहाँ कौन कंडक्ट करा रहा है. इंडिया में इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन. ओके, और इसकी जो सबसे बड़ी पोस्ट है इलेक्शन कमीशन की, वो है इलेक्शन कमिश्नर की, यानी कि चीफ इलेक्शन commissioner. Okay, who take all the decision regarding the elections. तो इलेक्शन कमिश्नर कौन है? इलेक्शन कमिश्नर enjoy the same power as judiciary. जैसे आपने पढ़ा होगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी के बारे में इन द 8th क्लास कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी जो है उसके ऊपर किसी तरह का भी कोई कंट्रोल नहीं है. ठीक है, वो बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट काम करती है. इसी तरह इलेक्शन कमीशन काम करता है. जिसकी सबसे हाईएस्ट पोस्ट है वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की. एंड एज यू नो, हमारे प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोड़ा. ओके, एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट. चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉट आंसरेबल टू द प्रेजिडेंट. किसी भी तरह की कोई भी सफाई किसी डिसीजन को लेकर उन्हें प्रेसिडेंट को नहीं देनी होती है. इससे पता चलता है कि ये पोस्ट कितनी पावरफुल है. लास्ट है वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. यस, लाइक द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमूव. ओके, तो अगर उनको हटाना भी होगा चीफ जस्टिस को, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस जो आपने पढ़ा है उसके तहत हटाना पड़ता है. बट इट वर्चुअली इम्पॉसिबल टू रिमूव the chief justice or the chief election commissioner. Okay, now come on the power and functions of election commissioner. First, EC takes decision on every aspect of conduct and control of election. Yes, EC take all the decision of announcement, from the announcement of the elections to the day of declaration of the result. अनाउंसमेंट से लेकर रिजल्ट डिक्लेरेशन डे तक सारे डिसीजन कौन लेता है? इलेक्शन कमीशन. सेकेंड, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट. स्टूडेंट्स, एज वी डिस्कस अर्लियर, द सम ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट और रूल एंड रेगुलेशन फॉलोड बाय द कैंडिडेट्स. ओके, फर्स्ट candidate not use any place of worship for election propaganda, or not use government vehicles, aircrafts and officials for elections. Once elections are announced, minister shall not lay foundation stone of any
projects or take any big policy decisions or make any promises of providing public facilities, as we have discussed earlier about the code of conducts. Next, EC can order government to follow सम गाइडलाइंस. अब इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है, जो रूलिंग पार्टी इस टाइम है, कि उन्हें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे. वाई? टू प्रिवेंट यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर टू इनहेंस इट चांस टू विन इलेक्शन. जो गवर्नमेंट उस टाइम है उसके गवर्नमेंट ऑफिसर्स का, उसकी पावर का नाजायज फ़ायदा ना उठाया जाए. ओके. नेक्स्ट, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट. जब इलेक्शन ड्यूटी लगती है, टीचर्स की भी लगती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की भी लगती है, तो उस टाइम सारे ईसी को रिस्पॉन्ड करते हैं. हर काम के लिए ईसी को रिपोर्ट किया जाता है, नॉट द गवर्नमेंट गाइडलाइंस. नेक्स्ट है, कैन ऑर्डर अ रीपोल. यस, इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑर्डर्ड अ रीपोल इन मैनी कॉन्स्टिट्यूंसी. अगर लगता है कि भी इलेक्शन जो है वो फेयर और जस्ट मैनर से नहीं हुए हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो कमीशन है वो दोबारा इलेक्शंस को करा सकता है. येस, इट हैज़ ऑर्डर्ड अ रीपोल इन मैनी कॉन्स्टिट्यूंसीज. स्टूडेंट्स, समटाइम द रूलिंग पार्टी डज नॉट लाइक द डिसीजन ऑफ द कमीशन, बट दे हैव नो चॉइस but to obey the decisions due to independence of the commission. Students, I hope you have understood the topic Independent Election Commission. In our next video, we will discuss about popular participation or acceptance of election result. After listening this video, you will read the topic with the help of your book. Thank you, student. Have a nice day.